Hello everyone, welcome to second lecture of series solution. In the first lecture, we studied how to find series solution for an ordinary point. Proceeding further, we now study the method to find series solution when x is equals to 0 is regular singular point. The method is known as Frobenius method. In the last lecture, we have studied when we define the point as regular singular point. For this, we have already noted down when p not 0, that is coefficient of d2y by dx square, if we put x is equals to 0 in it and it is equal to 0, the point is singular point and it can be further classified into regular and irregular singular point. Since we do not have any series solution for irregular singular point, so we directly assume that if p not 0 is 0, then the point is regular singular point. Remember, instead of checking everything in the question, you just have to see p not 0 is 0, then you can directly write that point is regular singular point. Now, if the point is regular singular point, we assume the solution as r0 to infinity ar x to the power m plus r. The method remains same. We find out the value of dy by dx, d2y by dx square and substitute it in given differential equation. Again, we get a series in powers of x and right hand side of the equation is 0. So we equate different powers of x to 0 and we get different relations. The lowest power of x when equated to 0 give us a quadratic equation in M known as indicial equation. Similarly, we compare other coefficients also, and when we compare a general power, then we obtain a recurrence relation. When we use recurrence relation, we find out a1, a2, a3 all in terms of a0. Here you can see there is a difference in ordinary point and in singular point. Singular point में जब आप करते हैं तो कोफिशिएंट्स आपके रिड्यूस होते हैं a0 और a1 में, लेकिन जब आप सिंगुलर पॉइंट के लिए करते हैं तो a1, a2, a3 दे ऑल आर रिड्यूस्ड इन टर्म्स ऑफ a0. ऑर्डिनरी पॉइंट के लिए जब आप कैलकुलेशंस करते हैं देन a1, a2, a3 ऑल आर रिड्यूस्ड इन टर्म्स ऑफ a0 एंड a1, लेकिन सिंगुलर पॉइंट की कैलकुलेशन में a1, a2, a3 आर रिड्यूस्ड इन टर्म्स ऑफ a0. दैट इज a1 ऑल्सो अकर्स इन टर्म्स ऑफ a0. सो फाइनली व्हाट हैपेंस, यहाँ पे जो भी सोल्यूशंस होंगे दे विल हैव ओनली वन कांस्टेंट दैट इज a0, बिकॉज a1 a0 के टर्म्स में आएगा, a2 भी a0 के टर्म्स में, a3 a4 सभी a0 के टर्म्स में है, तो फाइनल सोल्यूशन में खाली a0 एक कांस्टेंट आया. सो द सीरीज thus obtained is not complete solution. Why is it so? Because what happens, we have a second order differential equation and second order differential equation में there must be two constants, but we have here only one constant. So this solution is not complete solution. How to calculate complete solution now? To find out complete solution, we have to check the nature of roots of indicial equation. The method will be clear when we will be doing the questions. आपको M में जो भी इक्वेशन आएगी यानी जो भी इंडिसियल इक्वेशन आएगी उसके रूट्स चेक करने हैं. जब आप किसी भी इक्वेशन के रूट्स निकालते हैं विच इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो यहाँ पे आपके पास तीन केसेस आएंगे. या तो रूट्स आपके डिफरेंट हैं एंड देयर डिफरेंस इज नॉट एन इंटीजर, दैट मीन्स दोनों रूट्स का डिफरेंस आपके पास कोई भी फ्रैक्शनल क्वांटिटी हो सकता है. दिस विल बी योर केस वन. केस वन के लिए जब आप सोल्यूशन लिखेंगे तो इट इज वेरी सिंपल. सबसे पहले आपने y की सीरीज निकाली जैसे आपने ऑर्डिनरी पॉइंट में किया था. उसके बाद जो भी आपकी y की सीरीज आई है उसमें आप एक बार m की जगह फर्स्ट रूट यानी m1 रख दीजिए और एक बार m की जगह सेकेंड रूट यानी m2 रख दीजिए. फाइनल सोल्यूशन आप लिखेंगे a1 y1 प्लस a2 y2 से. Remember, this is the case when roots are different and their difference is not an integer. Case second, आपके दोनों रूट्स हो सकता है सेम हो. अगर रूट सेम है तो y की सीरीज निकालने तक का मेथड आपने जो ऑर्डिनरी में स्टडी किया था वहां तक का बिल्कुल एग्जैक्टली सेम रहेगा. उसके बाद एक रूट के लिए आप m की जगह m1 रख देंगे, ये आपका y1 आ गया. नाउ व्हाट अबाउट y2?
बिकॉज द रूट्स आर सेम तो y2 डायरेक्टली नहीं निकलेगा, आपको पहले इस y की सीरीज को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रेस्पेक्ट टू m, और उसके बाद आप m की वैल्यू रख देंगे इसमें m1. नाउ कंप्लीट सोल्यूशन विल बी a1 y1, y1 का मतलब आपने m की जगह m1 रखा है, एंड a2 y2, y2 का मतलब आपने पहले m के लिए डिफरेंशिएट किया और फिर उसमें m की जगह m1 रख दिया. नाउ थर्ड केस में आपके रूट्स डिफरेंट हैं और उनका डिफरेंस एक इंटीजर है. मान लीजिए रूट्स हैं आपके 1 और -1. इनका जब आप डिफरेंस लेंगे तो डिफरेंस विल बी या तो 2 होगा या -2, विच इज एन इंटीजर क्वांटिटी. अगर डिफरेंस आपका इंटीजर है तो आपको थर्ड केस लगाना है. इसमें एक और कंडीशन आप चेक करेंगे कि जो आपके स्मॉलर रूट्स हैं, अगेन कंसिडर द सेम रूट्स. मान लीजिए 1 और -1 रूट आया, -1 इन दोनों में से छोटा हो गया, और जब हम सीरीज में -1 रख रहे हैं तो आपकी सीरीज की कुछ टर्म्स इनफाइनाइट हो जा रही हैं. जो भी वैल्यू m की सीरीज को इनफाइनाइट बना रही है, आप उसी वैल्यू को सेलेक्ट करेंगे और दूसरी वैल्यू को डिस्कार्ड कर देंगे. अगर -1 रखने पर सीरीज इनफाइनाइट है तो आप -1 को सेलेक्ट कर लीजिए और 1 को डिस्कार्ड कर दीजिए. फिर आपने जो y की सीरीज लिखी है, उस y की सीरीज में आप कांस्टेंट a0 को रिप्लेस करेंगे b0 इंटू m माइनस m1 से, क्योंकि ये वाला फैक्टर सीरीज को इनफाइनाइट बना रहा है, तो हमने इस फैक्टर से पूरी सीरीज को मल्टीप्लाई कर दिया. ये जो नई सीरीज आई है इसको आप डिनोट कर देंगे y स्टार से. अब आपके पास रूट क्या रह गया, m1. आपने दूसरा रूट हटा दिया, तो अब आपको कौन सा केस अप्लाई करना है, सेम रूट्स वाला. सेम रूट्स के लिए क्या करेंगे, जो हमारी नई सीरीज आई थी y स्टार, उसमें हमने रखा m की जगह m1, और दूसरा सोल्यूशन निकालने के लिए इसी को हमने डिफरेंशिएट कर दिया m के रेस्पेक्ट में, और फिर उसमें हमने m की वैल्यू रख दी m1. तो हमारा कंप्लीट सोल्यूशन हो गया a1 y1 प्लस a2 y2. सो दीज आर द 3 केसेस विच वी हैव टू स्टडी. नाउ वी प्रोसीड बाय अंडरस्टैंडिंग एन एग्जाम्पल फॉर केस 1. Now we have to find the solution of this differential equation in series form. The equation given is 2x square d2y by dx square minus x dy by dx plus x square plus 1y is equals to 0. We first have to see whether the point is ordinary or the point is regular singular point. आपको ये बताया, आपको रेगुलर और इरेगुलर चेक नहीं करना है. What you have to see, you have to just see the value of p0 at 0. p0 0 का मतलब p0 कितना है यहाँ पे 2x स्क्वायर, यानी कोफिशिएंट ऑफ d2y बाय dx स्क्वायर. इसमें आपने x को 0 रखा, ये आ गया आपका 0. सो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 0 इज रेगुलर सिंगुलर पॉइंट. आप अगर ये नहीं भी शो करते हैं तो आप डायरेक्टली जस्ट ओरली चेक कर सकते हो वेदर दिस इज 0 और नॉट 0, और फिर आप डायरेक्टली लिख सकते हैं हियर x इज इक्वल्स टू 0 इज रेगुलर सिंगुलर पॉइंट. सो लेट द सोल्यूशन इज this step you have to remember. The solution we assume is r 0 to infinity a r x to the power m plus r. जो आपको गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको आप मार्क कर लीजिए इक्वेशन नंबर 1, और आप सोल्यूशन को मार्क कर लीजिए इक्वेशन नंबर 2. नाउ इस y की हेल्प से हम कैलकुलेट करेंगे dy बाय dx. इसे एक बार डिफरेंशिएट करना है जैसे हमने ऑर्डिनरी में किया था. दिस बिकम्स ए आर एज इट इज. यहाँ आ जाएगा m प्लस आर x टू द पावर m प्लस आर माइनस 1. देन वी फाइंड आउट d2y बाय dx स्क्वायर विच इज अगेन r 0 टू इंफिनिटी a r m प्लस r minus 1 x to the power m plus r minus 2. After calculating all these values, now we substitute them in given equation. So substituting in equation 1. इक्वेशन 1 में सबसे पहले आप ध्यान से देखिए 2x स्क्वायर एज इट इज, फिर हमने d2y बाय dx स्क्वायर सब्सटीट्यूट किया, r 0 टू इंफिनिटी a r m प्लस r minus 1 x to the power m plus r minus 2. Then x as it is, dy by dx रखोगे, it will be r 0 to infinity a r m plus r x to the power m plus r minus 1.
Last term is x square plus 1. Then we have sigma r 0 to infinity a r x to the power m plus r is equals to 0. Now again यहां से इस इक्वेशन को देखिए, बाहर क्या है इसमें x स्क्वायर, अंदर क्या हो गया m प्लस आर माइनस 2. तो ओवरऑल जब ये मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे x की पावर बचेगी m प्लस आर. ये वाला x आपने अंदर मल्टीप्लाई किया तो x की पावर आ जाएगी m प्लस आर. और यहां से आपके पास दो टर्म्स आएंगी, एक में पावर आएगी m प्लस आर प्लस 2 और एक में आएगी m प्लस आर. So simplifying this expression, we can write it as sigma r 0 to infinity 2 अंदर ले लीजिए 2ar then m plus r then m plus r minus 1 with x to the power m plus r. Next equation sigma r 0 to infinity ar as it is m plus r as it is और x की पावर आ जाएगी आपके पास m plus r. नेक्स्ट टर्म में एक्स स्क्वायर से जब आप मल्टीप्लाई करोगे सिग्मा आर 0 टू इन्फिनिटी ए आर एक्स टू द पावर m प्लस आर प्लस 2 हो जाएगा और अगला टर्म हो जाएगा r 0 टू इन्फिनिटी ए आर एक्स टू द पावर m प्लस आर इज इक्वल्स टू 0. सो नाउ x की पावर m प्लस आर में एक ये वाला टर्म है, एक ये वाला टर्म है और एक ये वाला टर्म है. हमने इन तीनों टर्म्स को कंबाइन किया और कंबाइन करके लिखने का तरीका आप देखो. सबसे पहले सिग्मा आर 0 टू इन्फिनिटी बाहर ले लीजिए, ए आर को बाहर ले लो और फिर इनके कोफिशिएंट्स लिखते जाओ. x की पावर m प्लस आर का लिख रहे हैं तो कोफिशिएंट हो गया 2 m प्लस आर माइनस 1. पावर्स को हम असेंडिंग फॉर्म में लिखते हैं, पहले लोएस्ट पावर का कोफिशिएंट फिर हाईएस्ट पावर का. यहां से ये लिख लिया. अब अगली टर्म ये वाली लेनी है. सिग्मा ऑलरेडी बाहर है, ए आर ऑलरेडी बाहर है तो हमारे पास यहां से बचेगा माइनस एज इट इज एंड एम प्लस आर. अभी हम एक्स की पावर नहीं लिख रहे हैं, दे आर एज इट इज. फिर उसके बाद ये वाली टर्म, ये सिग्मा बाहर ले चुके हो, ए आर बाहर ले चुके हो तो आपके पास बचेगा प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय एक्स टू द पावर एम प्लस आर. अब कौन सा टर्म रह गया आपका रिमेनिंग? वी आर लेफ्ट विद दिस टर्म तो इसे हमने वापस से यहाँ लिख दिया. दिस इज सिग्मा आर 0 टू इन्फिनिटी ए आर एक्स टू द पावर m प्लस आर प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0. पूरी सीरीज को हमने सिंप्लीफाई कर लिया जो भी हमारा एक्सप्रेशन था. इसके बाद जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ देखो इट इज काइंड ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, लेकिन इसे इस फॉर्म में हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते. इसे सिंप्लीफाई करने के लिए वी नीड फैक्टर फॉर्म. तो अब आप थोड़ा सा रफ में कैलकुलेशन करेंगे. व्हाट यू विल डू इन दिस कंप्लीट एक्सप्रेशन, आप यहाँ पे रफ में कर लीजिए, m प्लस आर की जगह आप k रख लीजिए. तो ये एक्सप्रेशन क्या बनेगा आपका? इट विल बिकम ट्वाइस ऑफ k, m प्लस आर की जगह k रखा, देन k माइनस 1 आ गया, k माइनस 1 माइनस के प्लस 1 इक्वल टू 0 वगैरह कुछ नहीं कर रहे हैं, बस हमने खाली इस फैक्टर को किया. ये हो गया आपका 2k स्क्वायर माइनस 2k एंड माइनस k दैट इज माइनस 3k प्लस 1. इसके आप फैक्टर्स कर लो. फैक्टर करने पर ये हो जाएगा 2k स्क्वायर माइनस 2k माइनस k प्लस 1 और यू कैन राइट द फैक्टर्स एज 2k माइनस 1 एंड देन k माइनस 1. एंड व्हाट इज k हियर? k इज m प्लस r. तो हमारे पास ये वाला जो एक्सप्रेशन था इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं. वी कैन राइट इट एज सिग्मा r 0 टू इन्फिनिटी ए आर आपका एज इट इज है और इस पूरे ब्रैकेट के फैक्टर्स क्या हो गए आपके पास? 2k माइनस 1 यानी 2m प्लस 2r माइनस 1. k की जगह आपने m प्लस r रखा और k माइनस 1 का मतलब m प्लस r माइनस 1. This multiplied by x to the power m plus r. Then we have sigma r 0 to infinity a r x to the power m plus r plus 2 that is equal to 0. इस इक्वेशन को हम नंबरिंग करेंगे इक्वेशन नंबर 3. इन एवरी क्वेश्चन दिस विल बी योर स्टैंडर्ड नोटेशन. जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसे 1 मान लीजिए, जो सोल्यूशन आपने अज्यूम किया उसे 2 मान लीजिए और जो आपने सिंप्लीफाई करने के बाद एक्सप्रेशन लिखा है उसे आप इक्वेशन नंबर 3 मान लेंगे. एंड रिमेंबर ऑल कोफिशिएंट्स मस्ट बी इन फैक्टर फॉर्म इंस्टीड ऑफ एल्जेब्रिक ऑपरेशन. तो ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 3.
अब इस इक्वेशन में देखो, जब आप r को 0 रखोगे तो फर्स्ट पावर ऑफ x इज x टू द पावर 0. फिर आपने r को 1 रखा तो वी गेट x टू द पावर, सॉरी इट इज नॉट 0, इट इज x टू द पावर m. देन वी गेट m प्लस 1. फिर आपने 2 रखा तो आपके पास आएगा m प्लस 2, फिर आएगा m प्लस 3 एंड सो ऑन. यहाँ जब आप r को 0 रखोगे, द सिग्मा विल ओपन फ्रॉम x टू द पावर m प्लस 2, देन नेक्स्ट पावर इज m प्लस 3 एंड सो ऑन. ऑर्डिनरी पॉइंट के केस में भी हमने ये किया था कि जितनी पावर डिफरेंट है उतनी आपको अलग से कंपेयर करनी है, और जहां से आपके पास कॉमन पावर्स आएंगी वहां से आप एक जनरल पावर को कंपेयर करेंगे. तो यहाँ हमारे पास कौन सी पावर्स डिफरेंट है? वी हैव x टू द पावर m जो अलग है, देन x टू द पावर m प्लस 1. फिर m प्लस 2 से आपके पास कॉमन टर्म्स आने लग गई, तो इंस्टीड ऑफ कंपेयरिंग m प्लस 2 वी विल कंपेयर m प्लस r प्लस 2. So now equating the coefficients of various powers of x to 0. Equating the coefficients of various powers of x to 0. So what we are doing, हमें सबसे पहले compare करना है x to the power m का coefficient. So I have to compare the coefficient of x to the power m. Then I will compare the coefficient of x to the power m plus 1. और फिर जब हम जनरल लेंगे तो हम लेंगे m plus r plus 2 का coefficient. m के लिए आप इक्वेशन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट में r को 0 रख दीजिए, तो आपके पास रिलेशन आएगा a नॉट इंटू 2m माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय m माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0. यहाँ से ये ध्यान रखना a नॉट कभी भी 0 नहीं होता है, तो दिस इम्प्लाइज m की वैल्यू आ जाएंगी आपके पास हाफ और 1. इस इक्वेशन को हम नंबर करेंगे इक्वेशन नंबर 4. एंड क्योंकि ये आपने लोएस्ट पावर को कंपेयर किया है, तो ये जो भी इक्वेशन आपके पास आई है दिस इज इंडिसियल इक्वेशन एंड दीज आर द रूट्स ऑफ इंडिसियल इक्वेशन. अभी इनका आपको कोई यूज नहीं लेना है. m प्लस 1 के लिए इक्वेशन 3 के फर्स्ट एक्सप्रेशन में आप r को 1 रख दो, तो ये बन जाएगा a1. देन यू विल गेट 2m प्लस 1 एंड देन यू विल गेट m दैट इज इक्वल टू 0. यहाँ से आपके पास 3 पॉसिबिलिटी हैं, या तो m 0 हो, लेकिन m 0 नहीं है क्योंकि m की वैल्यू 1 और हाफ है, तो ये 0 नहीं हो सकता. 2m प्लस 1 0 हो, बट वो भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि m माइनस हाफ नहीं है. तो आपके पास एक ही कंडीशन बची, दैट इज a1 इज 0. इसको मार्क कर दीजिए इक्वेशन नंबर 5. अब आपको चाहिए m प्लस r प्लस 2 का रिलेशन. इसके लिए आप इक्वेशन 3 में देखो, इक्वेशन 3 में आपके पास है x की पावर m प्लस r. तो जैसे हमने अगेन ऑर्डिनरी पॉइंट में किया था, m प्लस r को m प्लस r प्लस 2 बनाना है, तो जहां जहां r है वहां वहां आप प्लस 2 कर देंगे. सो व्हाट वी गेट a r प्लस 2, देन 2m प्लस 2r था तो 2r प्लस 4 हो जाएगा एंड यू गेट 2m प्लस 3 आ जाएगा, 2m प्लस 2r प्लस 3 क्योंकि माइनस 1 भी है वहां पे. फिर नेक्स्ट एक्सप्रेशन में m प्लस r प्लस 1 हो गया आपके पास. अगेन अगला टर्म जो था आपके पास दैट वाज प्लस ऑफ ar, तो आपके पास आ जाएगा प्लस ar इज इक्वल्स टू 0 एंड दिस इम्प्लाइज ar प्लस 2 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी. ar प्लस 2 विल बी माइनस ऑफ ar अपॉन 2m plus 2r plus 3 and m plus r plus 1, and this becomes your equation number 6, and this relation is known as recurrence relation. यहाँ देखो रिकरेंस रिलेशन में इधर r प्लस 2 है और इधर r है, 2 का डिफरेंस है. जब रिकरेंस रिलेशन में 2 का डिफरेंस होता है तो हम इवन और ऑड वैल्यूज अलग अलग कैलकुलेट करते हैं. सो नाउ आई पुट r0 रखने पर a2 की वैल्यू विल बी माइनस ऑफ a नॉट. यहाँ आपने r को 0 रखा, ये बन जाएगा 2m प्लस 3. यहाँ r को 0 रखा, ये बन जाएगा m प्लस 1. सिमिलरली आप r को 2 रख दीजिए. r2 रखने पर लेफ्ट में यू विल हैव a4, यहाँ आ जाएगा माइनस ऑफ a2. फिर आपने r को 2 रखा तो दिस वैल्यू विल बी 2m, देन 4 प्लस 3 दैट इज 7, देन दिस विल बी m प्लस 3. इसमें a2 की वैल्यू भी आप रिप्लेस कर दो जो आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो, तो दिस विल बिकम a नॉट, देन 2m प्लस 7. ये जो वैल्यू है ये मिडिल में इंसर्ट करेंगे, तो दिस विल बिकम 2m प्लस 3 देन m प्लस 1 और फिर लास्ट में आ जाएगा m प्लस 3.
इसे आप हमेशा इसी तरीके से लिखेंगे बिकॉज इससे एक पैटर्न पता चल रहा है। यहाँ m+1 m+3 तो अगला टर्म m+5, इधर 2m+3 2m+7 तो फिर नेक्स्ट टर्म आपका 2m+11 हो जाएगा। अगर हम ऑड टर्म्स रखते हैं तो जब हम r इज इक्वल्स टू 1 रखेंगे इस रिलेशन में, सो वी पुट नाउ r इज इक्वल्स टू 1। दो आप इवन निकाल लीजिए और दो टर्म्स आप ऑड निकाल लीजिए। I calculated this side itself. R is equals to 1 रखने पर लेफ्ट साइड में you have A3 and this will be some function of A1. लेकिन इक्वेशन 5 में देखो A1 0 था तो A3 भी 0 हो जाएगा। और अगर A3 0 है तो जब आप A5 निकालोगे वो किसके टर्म्स में आएगा? A3 में। A7 A5 में, तो ये सारे के सारे ऑड कोफिशिएंट्स आपके 0 हो जाएंगे। नाउ हमने सारे कोफिशिएंट्स निकाल लिए हैं। सो नाउ यूजिंग ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 2, यूजिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 2, व्हाट वाज अवर इक्वेशन 2? उसका मैं एक्सपेंशन कर रही हूँ। इट वाज a0 x टू द पावर m, फिर अगला टर्म था a1 x टू द पावर m+1, फिर a2 x टू द पावर m+2, फिर a3 x टू द पावर m+3 एंड सो ऑन। पूरी सीरीज में से आप a0 x की पावर m को कॉमन ले लीजिए। a1 0 है, a3 0 है, a5 a7 0 है, तो आपके पास ये वाला टर्म खत्म हो गया, ये वाला टर्म खत्म हो गया और आगे वाले ऑड टर्म्स आपके खत्म हो जाएंगे। सो व्हाट वी हैव, यहाँ से 1 बचेगा, यहाँ से आपने x की पावर m कॉमन ले लिया तो a2 बच जाएगा, x² बचेगा, a0 भी बाहर लिया है तो a2 बाय a0। ऐसे ही जब अगला टर्म लिखोगे तो a4 बाय a0 आएगा, x की पावर 4। फिर इसमें वैल्यू रखो a0 x टू द पावर m, दिस इज 1 प्लस व्हाट इज a2 बाय a0, a2 बाय a0 इज, यहाँ से माइनस आ जाएगा, x² एज इट इज, देन वी हैव 2m+3 एंड m+1। फिर अगला टर्म यहाँ से a4 बाय a0, ये a4 बाय a0, तो दिस विल बी x टू द पावर 4 अपॉन 2m+7 2m+3 then m+1 then m+3 and further more terms like this. This is y series. यहाँ तक का मेथड आपका हर क्वेश्चन में एग्जैक्टली सेम रहेगा इक्वेशन नंबर 7 तक। चाहे आप कोई भी केस लें, इंडिसियल इक्वेशन के रूट्स कैसे भी हों, टिल दिस स्टेप एवरी क्वेश्चन विल हैव सेम कैलकुलेशन। इसके बाद जब आप कंप्लीट सोल्यूशन लिखेंगे तो दैट विल डिपेंड अपॉन द रूट्स ऑफ इंडिसियल इक्वेशन। दैट मीन्स नाउ यू हैव टू लुक बैक एट द इक्वेशन नंबर 4। यहाँ आपके रूट्स कैसे हैं? रूट्स आर डिफरेंट एंड व्हाट इज देयर डिफरेंस? The difference is 1 by 2, which is not an integer quantity. So we will apply now case 1. Now, since the roots of indicial equation are different and their difference is not an integer, so complete solution का case 1 याद करिए। उसमें आपको सबसे पहले y1 calculate करना है। So now y1 का मतलब y at m is equals to m1. What is m1? m1 is m is equals to 1. तो जो आपने y सीरीज निकाली है इक्वेशन नंबर 7 में, उसमें आप m की वैल्यू 1 रख दीजिए तो इट बिकम्स a0, देन x आ जाएगा। फिर आपने वैल्यू रखी 1 माइनस x², डिनोमिनेटर में यू विल हैव 2m+3 था तो दैट विल बिकम 5 इंटू 2। अगला टर्म आप लिख रहे हो तो दैट विल बिकम x टू द पावर 4, डिनोमिनेटर में 9 इंटू 5 into 2 into 4 and so on. So we have actually this is equals to a0 x into 1 minus x square by 10 plus x to the power 4 by 360. ये हो गया आपका y1. Also we calculate y2. y2 is y at m is equals to m2, यानी y when m is equals to 1 by 2. अब आपके पास जहां पे भी m है आप वहां 1/2 रख दीजिए तो सीरीज हो जाएगी आपकी a0 x टू द पावर हाफ हो गया, देन यू हैव 1 माइनस x², डिनोमिनेटर में आपके पास 2 इंटू 1/2 रख के देख लीजिएगा तो दैट विल बिकम 1 + 3 दैट इज 4। फिर आपके पास आएगा 1 + 1/2 दैट इज 3/2।
फिर अगला टर्म आपके पास हो जाएगा x to the power 4, then 1 plus 7 is 8, 1 plus 3 will become 4, then 1 plus 1 by 2 is 3 by 2, then 1 plus 1 by 2 plus 3 is 7 by 2. So on simplification, we get this as a naught x to the power half 1 minus x square by 6 आ गया, और नेक्स्ट टर्म हो गया आपका x to the power 4 by 168. सेवेंथ इक्वेशन तक हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं. सो दिस बिकम्स योर इक्वेशन नंबर 8 एंड दिस बिकम्स योर इक्वेशन नंबर 9. फर्दर, सो दस कंप्लीट सोल्यूशन इज, कंप्लीट सोल्यूशन आप लिखेंगे y इज इक्वल्स टू a1 y1 एंड a2 y2, वेयर अब आप यहाँ चाहें तो y1 और y2 की वैल्यू रख दीजिए सिमिलरली बाय इक्वेशन नंबर 8 एंड 9, और यू कैन सिंपली राइट वेयर y1 एंड y2 आर गिवन बाय इक्वेशन 8 एंड 9, और कंप्लीट सोल्यूशन जो आपने लिखा है उस इक्वेशन को आप नंबर कर दीजिए 10. तो यू कैन जस्ट रिप्लेस द वैल्यूज ऑफ y1 y2 in this, or you can just write down y1 y2 are given by equation 8 and 9. So this completes an example of case 1. We will now study 2 more examples for case 2 and case 3. Now we consider second case when roots of indicial equation are same. For this we consider an example. We have to solve this equation in series. First of all, you can see यहाँ पे जो d2y by dx square का कोफिशिएंट है, इसमें जब आप 0 रखेंगे it becomes 0. So we directly write here x is equals to 0 is regular singular point. ये आप पूरा लिख देंगे, x is equals to 0 is regular singular point. So let y, solution हम assume करेंगे r0 to infinity a r x to the power m plus r. As done earlier, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए और इसको इक्वेशन नंबर 2. नाउ अब आप सिमिलरली आप y से dy by dx और d2y by dx स्क्वायर कैलकुलेट करिए, एंड आई एम डायरेक्टली सब्सटीट्यूटिंग दोज वैल्यूज इन गिवन इक्वेशन 1. सो सब्सटीट्यूटिंग y dy by dx एंड d2y by dx स्क्वायर इन इक्वेशन 1. यहाँ सब्सटीट्यूशन करने के बाद दिस बिकम्स x r0 to infinity a r m plus r m plus r minus 1 x to the power m plus r minus 2. Then we have 1 plus x dy by dx रख दो, r0 to infinity a r m plus r x to the power m plus r minus 1. Then 2y, y is a r x to the power m plus r is equals to 0. अगेन यहाँ से आप जब सिंप्लीफाई करेंगे x से इंटू किया तो वी हैव सिग्मा r 0 to infinity a r m plus r minus 1, और x की पावर आ जाएगी m plus r minus 1. ये बाहर वाला x अंदर इंटू कर दिया हमने, 1 से इंटू किया तो वी हैव r0 to infinity a r m plus r x to the power m plus r minus 1. फिर आपने इसे x से इंटू किया, जब आप इसे x से इंटू कर रहे हैं तो x से इंटू करने पर यू विल बी हैविंग सिग्मा r 0 to infinity a r m plus r x to the power m plus r, और ये लास्ट वाला टर्म भी आ जाएगा आपके पास, दैट इज ट्वाइस r0 to infinity a r x to the power m plus r is equals to 0. So you can now see कि आपके पास ओवरऑल कितने पावर्स हो गए x के. यहाँ पे है आपके पास m plus r minus 1, यहाँ भी है आपके पास m plus r minus 1, यहाँ आ गया m plus r और यहाँ आ गया m plus r. So overall we have 2 different powers and we will arrange it in ascending order. So r0 to infinity a r, पहले हम r minus 1 का लिख रहे हैं तो यहाँ से आ जाएगा m plus r minus 1. इस वाली टर्म में वी हैव प्लस ऑफ m plus r, देन इट इज x to the power m plus r minus 1. नेक्स्ट टर्म विल बी सिग्मा r0 to infinity a r. यहाँ से कोफिशिएंट्स जब आप लिखोगे तो दे विल बी m plus r, यहाँ से बचेगा, और यहाँ से आपके पास बचेगा +2 मल्टीप्लाइड बाय x to the power m plus r is equals to 0.
इसके फैक्टर्स करने के लिए आपको एक तरीका बताया था कि यहाँ से हम m प्लस आर को k रखें तो दिस बिकम्स k इंटू k माइनस 1 प्लस k, दैट इज k स्क्वायर माइनस k प्लस k. तो वी हैव ओनली k स्क्वायर. इसको आपको इक्वल टू 0 वगैरह कुछ नहीं रखना है. तो दिस बिकम्स r0 टू इन्फिनिटी a r एंड k का मतलब m प्लस आर का होल स्क्वायर, x टू द पावर m प्लस आर माइनस 1. देन नेक्स्ट एक्सप्रेशन इज r0 टू इन्फिनिटी. वी हैव a r m प्लस आर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय x टू द पावर m प्लस आर इज इक्वल्स टू 0. अभी आपका पूरा फैक्टर फॉर्म में हो गया है. तो इस इक्वेशन को हम नंबरिंग करेंगे इक्वेशन नंबर 3. यहाँ से जब आप r को 0 रखेंगे तो x की मिनिमम पावर m माइनस 1, फिर m आएगी, फिर m प्लस 1 आएगी एंड सो ऑन. यहाँ पे जब हम रखेंगे तो मिनिमम पावर आएगी m प्लस 1 एंड सो ऑन. इसका मतलब सेपरेट टर्म कौन सी है, m माइनस 1 अलग से आ रहा है, और जब हम m ले रहे हैं या m प्लस 1 ले रहे हैं तो वो एक्सप्रेशन दोनों में आएगा. दैट मीन्स हमें x की पावर m माइनस 1 का कोफिशिएंट 0 करना है और फिर हम एक जनरल टर्म यानी हाईएस्ट m प्लस r को इक्वल टू 0 करेंगे. So now equating coefficients of various powers of x to 0. We have seen that we have to compare two coefficients. One is x to the power m minus 1 and the second one is x to the power m plus r. m माइनस 1 के लिए इक्वेशन 3 के फर्स्ट टर्म में आप r को 0 रख दीजिए. सो इट बिकम्स a नॉट m स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 एंड सिंस a नॉट इज नॉट 0 सो वी गेट m स्क्वायर एज 0 because a naught is never 0. So this implies m is 0 and 0. So you can see the roots of indicial equation, that is the values of m are same. This becomes equation number 4. Now we compare m plus r का कोफिशिएंट. इसके लिए आप इक्वेशन 3 के फर्स्ट पार्ट में वहां x की पावर m प्लस आर माइनस 1 है, आपको m प्लस आर बनाना है. तो जहां जहां r है वहां आप प्लस 1 कर दीजिए, r के साथ में प्लस 1 और ऐड कर देंगे. सो वी गेट a r प्लस 1. देन वी हैव m प्लस आर प्लस 1 होल स्क्वायर. ये फर्स्ट टर्म से आएगा. नेक्स्ट टर्म से आपके पास आएगा a r m प्लस आर प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 0. So finally the recurrence relation becomes a r plus 1 is equals to minus of a r multiplied by m plus r plus 2 upon m plus r plus 1 का होल स्क्वायर. दिस बिकम्स इक्वेशन नंबर 5. इसमें r की वैल्यू आप 0, 1, 2 एंड सो ऑन रखेंगे. सो दिस इज योर रिकरेंस रिलेशन. यहाँ आप देख सकते हो अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए वहां 2 पावर्स का डिफरेंस था, r और r प्लस 2 था. तो वी हैव टेकन ऑड एंड इवन टर्म सेपरेटली. यहाँ एक ही का डिफरेंस है तो आप इवन ऑड नहीं करेंगे, आप यहाँ से डायरेक्टली r की वैल्यू कंजिक्यूटिवली रखते जाइए. r को हमने 1 रखा तो r1 रखने पर a1 की वैल्यू आ जाएगी माइनस ऑफ m प्लस 2 अपॉन m प्लस 1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय r को आप r को हम सबसे पहले 0 रख रहे हैं. तो r को 0 रखने पर द वैल्यू विल बी a1 इन टर्म्स ऑफ a नॉट. देन वी कैलकुलेट r इज इक्वल्स टू 1 रखने पर तो a2 की वैल्यू आएगी आपके पास. a2 विल बी माइनस ऑफ m प्लस 3 अपॉन m प्लस 2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय a1. a1 की वैल्यू इसमें आप रख दीजिए. a1 की वैल्यू रखने पर a2 फाइनली आपका बनेगा m प्लस 3 अपॉन m प्लस 2 इंटू m प्लस 1 का होल स्क्वायर. सो अल्टीमेटली आपके पास ये वैल्यू हो गई इन टर्म्स ऑफ a नॉट. वन मोर कोफिशिएंट वी कैलकुलेट सिमिलरली. r इज इक्वल्स टू 2 रखने पर आपके पास a3 आएगा. a3 विल बी m प्लस 4 अपॉन m प्लस 3 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय a2 विद अ माइनस साइन. यहाँ से आप a2 जो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं वो रख दीजिए इसमें. तो a3 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी माइनस ऑफ m प्लस 4 अपॉन m प्लस 3 m प्लस 2 एंड m प्लस 1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय a नॉट. अगेन बाय इक्वेशन नंबर 1 जब हमने ये सारे कैलकुलेट कर लिए तो इक्वेशन 2 हम काम में लेंगे विच वॉज y इज इक्वल्स टू r
0 to infinity a r x to the power m plus r. Proceeding as earlier, ये आपका बनेगा a naught x to the power m, a1 x to the power m plus 1, then a2 x to the power m plus 2 and so on. इसमें से आपने a naught x to the power m कॉमन लिया, ये बन जाएगा 1 plus a1 by a naught x, a2 by a naught x square and so on. इसमें वैल्यूज रख दीजिए, a naught x to the power m, then we have 1. यहाँ से आपके पास नेक्स्ट टर्म हो गई 1 माइनस m प्लस 2 अपॉन m प्लस 1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय x. फिर अगला टर्म आ गया आपके पास m प्लस 3 m प्लस 2 m प्लस 1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय x स्क्वायर एंड सो ऑन. दिस बिकम्स योर इक्वेशन नंबर 6. यहाँ तक का मेथड आपका हर जगह सेम है, इसमें हमने कोई भी चेंज नहीं किया है. नाउ टू राइट कंप्लीट सोल्यूशन वी हैव टू लुक बैक एट इंडिसियल इक्वेशन, दैट इज रूट्स आर सेम. सो वी नाउ अप्लाई द केस सेकेंड टू फाइंड आउट द कंप्लीट सोल्यूशन. सो नाउ केस सेकेंड के अकॉर्डिंग पहले हम यहाँ से कैलकुलेट करते हैं डेल वाई बाय डेल एम. सो डेल वाई बाय डेल एम के लिए इक्वेशन नंबर 6 को हमें डिफरेंशिएट करना है पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू m. सो वी गेट a नॉट x टू द पावर m log x. जब हम x टू द पावर m का कर रहे हैं, बाय पार्ट्स करेंगे आप u इंटू वी वाला मेथड लगा के. तो फर्स्ट आपने x की पावर m का किया और ये ब्रैकेट आपका एज इट इज m प्लस 2 m प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू x प्लस सो ऑन. देन आपने a नॉट x टू द पावर m को एज इट इज रखा और ब्रैकेट का डिफरेंशिएशन किया. 1 का डिफरेंशिएशन 0, देन नेक्स्ट टर्म का आपने किया तो इट बिकम्स m प्लस 1 की पावर 4, यहाँ m प्लस 1 का होल स्क्वायर, देन माइनस ऑफ m प्लस 2 एज इट इज और m प्लस 1 स्क्वायर का ट्वाइस ऑफ m प्लस 1 इंटू x. नेक्स्ट टर्म्स एज इट इज आपके रह जाएंगे. ये हो गई आपका डेल y बाय डेल m. इस इक्वेशन को हम नंबरिंग कर देते हैं इक्वेशन नंबर 7. अब अकॉर्डिंगली जब आप कंप्लीट सोल्यूशन लिखेंगे, सो नाउ व्हाट इज अवर y1? y1 is y when m is equals to m1, that is the value of y when m is 0. इसके लिए आप इक्वेशन नंबर 6 में जहां जहां m है वहां वहां आप 0 रख दीजिए. सो इट बिकम्स a नॉट 1 माइनस 2x प्लस 3 बाय 2 एक्स स्क्वायर. डायरेक्टली इक्वेशन में हमने सभी जगह m को 0 रखा है और वैल्यू ऑफ y2 विल बी डेल y बाय डेल m व्हेन m इज 0. इसके लिए आप इक्वेशन 7 में m को 0 रख दो तो ये बन जाएगा आपका a नॉट x टू द पावर m विल बिकम 1 एंड वी हैव log ऑफ x. देन द ब्रैकेट इज 1 माइनस 2x प्लस 3 बाय 2 एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन. सेकेंड वाले से आपके पास आ जाएगा a नॉट देन 3x एंड नेक्स्ट टर्म्स विल बी लाइक दिस. अब आपकी ये हो गई इक्वेशन नंबर 8 एंड दिस बिकम्स योर इक्वेशन नंबर 9. सो फाइनली कंप्लीट सोल्यूशन इज, so complete solution will be the value of y as a1 y1 plus a2 y2. यहाँ y1 के लिए आप इक्वेशन 8 को रिप्लेस कर दीजिए और y2 के लिए आप इक्वेशन 9 को रिप्लेस कर दीजिए और you can simply write where y1 and y2 are given by equations 8 and 9. So this becomes your complete solution when roots of indicial equation are same. We consider case third when roots are different and differ by an integer. We consider this equation. This is a particular example of Bessel equation. अगर आप 4 की जगह n square लिख देंगे तो this will be a general Bessel equation. Now we direct started solution. यहाँ पे we have x is equals to 0 रखने पर ये वैल्यू 0 हो रही है. So I directly assume that here x is equals to 0 is regular singular point. अगर ये रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है तो इसका सोल्यूशन अज्यूम कर लीजिए y इज इक्वल्स टू r 0 टू इन्फिनिटी a r x टू द पावर m प्लस r. फिर आप वैल्यूज रखेंगे सेम प्रोसीजर से. सो सब्सटीट्यूटिंग y dy बाय dx एंड d2y बाय dx स्क्वायर इन इक्वेशन 1. नंबरिंग आपको इक्वेशंस की वैसे ही करनी है. गिवन इक्वेशन 1 सोल्यूशन जो आपने अज्यूम किया दैट इज इक्वेशन नंबर 2. वैल्यू रखने के बाद में आपके पास फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर दैन सिग्मा आर 0 टू इन्फिनिटी a r
m plus r minus 1 multiplied by x to the power m plus r minus 2. फिर x dy by dx r0 to infinity a r m plus r x to the power m plus r minus 1. Then we have x square minus 4 sigma r 0 to infinity a r x to the power m plus r is equals to 0. ओवरऑल आपके पास जब ये एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो पावर बचेगी एम प्लस आर, ये जब एक्स मल्टीप्लाई होगा तो पावर बचेगी एम प्लस आर, यहाँ एम प्लस आर आएगा, ये पावर भी एम प्लस आर हो जाएगी। जब आप एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर आएगी एम प्लस आर प्लस 2, और जब आप कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास पावर आएगी एम प्लस आर। So overall we have two different powers, one is m plus r and second is m plus r plus 2. हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं सेम तरीके से। r0 टू इन्फिनिटी ए आर हमने कॉमन लिया, m प्लस आर के लिए यहाँ से m प्लस आर, यहाँ से m प्लस आर माइनस 1, इसमें भी m प्लस आर है तो यहाँ से कोफिशिएंट आ जाएगा प्लस ऑफ m प्लस आर। लास्ट टर्म में, सेकेंड लास्ट टर्म में आएगा आपका m प्लस आर एकदम लास्ट टर्म में, तो यहाँ से कोफिशिएंट रह जाएगा हमारे पास माइनस 4x टू द पावर m प्लस आर। और फिर अगली टर्म बनेगी आपके पास r0 टू इन्फिनिटी a r x टू द पावर m प्लस आर प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। इसके फैक्टर्स करने के लिए आपको कहा था इसको हम k से रिप्लेस करते हैं m प्लस आर को, ये बन जाएगा k माइनस 1, दिस इज k एंड दिस इज माइनस ऑफ 4, सो इट एक्चुअली बिकम्स k स्क्वायर माइनस k प्लस k माइनस 4, सो वी हैव k स्क्वायर माइनस 4 और वी हैव k प्लस 2 एंड k माइनस 2। दिस ऑल इज ऑन रफ कैलकुलेशन। यहाँ हमने रिप्लेसमेंट किया, वी गेट r0 टू इन्फिनिटी a r k प्लस 2 का मतलब m प्लस r प्लस 2, देन वी हैव m प्लस r माइनस 2 x टू द पावर m प्लस r, देन वी हैव r0 टू इन्फिनिटी a r x टू द पावर m प्लस r प्लस 2 इक्वल टू 0। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 3। अब जब आप यहाँ पे r को 0 रखेंगे, आपकी मिनिमम पावर m, फिर आपकी पावर आएगी m प्लस 1, फिर आपकी पावर आएगी m प्लस 2 एंड सो ऑन। यहाँ पे जब आप r को 0 रखेंगे द पावर्स विल स्टार्ट फ्रॉम m प्लस 2, सो इन ऑल आपको पावर m को कंपेयर करना है 0 के पावर m प्लस 1 को, और फिर इसके बाद से आप इनके लिए एक जनरल रिलेशन लेंगे दैट विल गिव यू रिकरेंस रिलेशन। सो इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स टू 0, सो इक्वेटिंग वेरियस कोफिशिएंट्स टू 0। सबसे पहले हमने कंपेयर किया x की पावर m का कोफिशिएंट, उसके लिए आप इस एक्सप्रेशन में r को सब जगह 0 रख दीजिए, इट बिकम्स a0, देन वी हैव m प्लस 2, देन वी हैव m माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। सिंस a0 इज नॉट इक्वल टू 0 तो m की वैल्यू आ गई आपके पास 2 और माइनस 2। फिर हमने कंपेयर किया कोफिशिएंट x की पावर m माइनस 1 का, m प्लस 1 का, इसके लिए आप इस एक्सप्रेशन में r को रिप्लेस करिए 1 से, ये बन जाएगा a1, m प्लस 3 यहाँ रखा m माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0। नाउ अगर आप m माइनस 1 को 0 लेते हैं तो m1 आएगा विच इज नॉट पॉसिबल, m प्लस 3 को 0 लेते हैं तो m माइनस 3 आएगा विच इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, सो दिस इम्प्लाइज a1 इज 0। ये आपकी इक्वेशन हो गई 4, ये आपकी इक्वेशन हो गई 5, और ये जो वैल्यूज आई हैं दीज आर रूट्स ऑफ इंडिसियल इक्वेशन। इसके बाद हम एक जनरल पावर कंपेयर करेंगे और वो हम हमेशा हायर पावर लेते हैं दैट इज m प्लस आर प्लस 2। यहाँ ऑलरेडी m प्लस आर प्लस 2 है, यहाँ m प्लस आर है, तो इस पूरे एक्सप्रेशन में जहां जहां r है उसके साथ आप प्लस 2 और कर दीजिए, सो इट बिकम्स a r प्लस 2, इट बिकम्स m प्लस आर प्लस 4, देन इट बिकम्स m प्लस आर, और यहाँ से वी हैव सिंपली ए आर दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ से रिकरेंस रिलेशन आ जाएगा ए आर प्लस 2 विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ ए आर अपॉन m प्लस आर प्लस 4 इंटू m प्लस आर। दिस बिकम्स योर इक्वेशन नंबर 6 एंड इट इज नोन एज रिकरेंस रिलेशन। Now we will use recurrence relation to find out the values of different constants. यहाँ पे भी आपके पास recurrence relation में 2 values का difference है, तो हम even और odd अलग से calculate करेंगे।
r इक्वल टू 0 रखने पर आपके पास a2 की वैल्यू आ जाएगी. a2 विल बी माइनस ऑफ a नॉट अपॉन m इंटू m प्लस 4. फिर हमने r को 2 रखा तो आपके पास a4 आ जाएगा. a4 विल बी इन टर्म्स ऑफ a2 जब आप कैलकुलेट करेंगे तो a4 विल बी a2 अपॉन m प्लस 6 एंड m प्लस 2. अब इसमें आप a2 की वैल्यू रख दीजिए. a2 की वैल्यू जब आप यहाँ पे रख देंगे तो ये बन जाएगा a नॉट. देन यू विल बी हैविंग m प्लस 6, देन m प्लस 4, m प्लस 2 एंड m. सो दिस इज वैल्यू ऑफ a4. फिर हम ऑड वैल्यूज रखते हैं. जब आप r को 1 रखेंगे तो a3 विल बी सम terms multiplied by a1, but a1 is 0, so a3 is 0, and therefore a5, a7 all will be 0. Now by equation 2 सारे constants निकालने के बाद अब हम वापस उसी मेथड पे आ जाते हैं. r0 to infinity a r x to the power m plus r. सीरीज का एक्सपेंशन कर लीजिए. You will have this expression. आफ्टर दैट जब हम यहाँ से a नॉट एक्स टू द पावर m कॉमन निकालेंगे, ये एक्सप्रेशन बन जाएगा आपका 1 प्लस a1 बाय a नॉट. देन यू हैव a2 बाय a नॉट एक्स स्क्वायर, यहाँ x एंड सो ऑन. सो नाउ वी हैव a नॉट एक्स टू द पावर m एज इट इज 1. a1 आपका 0 है तो ये टर्म आपका खत्म हो गया. फिर हमने a2 की वैल्यू रखी तो a2 बिकम्स a नॉट आप कॉमन ले चुके हो तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन m इंटू m प्लस 4. फिर आप सिमिलरली a3 0 है, a4 वाला एक्सप्रेशन लिख दीजिए. इट बिकम्स एक्स टू द पावर 4 m प्लस 6 m प्लस 4 m प्लस 2 इंटू m. And this becomes your equation number 7. यहाँ तक का प्रोसीजर अगेन यू कैन सी इट इज एवरीवेयर सेम. इसके बाद यू हैव टू लुक बैक टू द रूट्स ऑफ इंडिसियल इक्वेशन. दे वर +2 एंड -2. देयर डिफरेंस वाज -4 और +4 विच इज एन इंटीजर. सो वी हैव टू अप्लाई केस थर्ड. आफ्टर दैट +2 और -2 में से जो मिनिमम रूट है दैट वाज -2. आपके पास m की ये वैल्यूज हैं -2 और +2. मिनिमम इज -2. इस सीरीज में जब हम m की वैल्यू -2 रखते हैं तो ये वाला टर्म देखो, दिस बिकम्स 0 एंड सीरीज बिकम्स इनफाइनाइट. इसके बाद की सारी टर्म्स इनफाइनाइट हो जाएंगी. जो भी वैल्यू रूट को इनफाइनाइट कर रही है आपको वो ही वैल्यू लेनी है और 2 को डिस्कार्ड कर देना है. सो नाउ वी कंसिडर द केस व्हेन m इज इक्वल्स टू -2. सबसे पहले इसके लिए आपको इस कंडीशन को रिमूव करना है तो a नॉट कांस्टेंट को हम रिप्लेस करेंगे b नॉट इंटू m प्लस 2 से, और जो नया y आएगा उसे हम डिनोट करेंगे y स्टार से. सो दिस बिकम्स b नॉट इंटू एक्स टू द पावर m प्लस 2 को आप अंदर ले जाइए, m प्लस 2 यहाँ से आ जाएगा m प्लस 2, देन m इंटू m प्लस 4 एक्स स्क्वायर. फिर अगला टर्म x टू द पावर 4, देन यू विल हैव m प्लस 6 m प्लस 4 m प्लस 2 कैंसिल हो गया एंड वी हैव m एंड सो ऑन. नाउ अब इसके बाद आपकी कोई भी टर्म इनफाइनाइट नहीं होगी. वी मार्क दिस एज इक्वेशन नंबर 8. आफ्टर दैट अब आप सेम रूट्स वाला केस अप्लाई करेंगे. उसके लिए आपको डेल वाई स्टार बाय डेल m इसका डिफ्रेंसिएशन बाय सेम प्रोसीजर b नॉट एक्स टू द पावर m log x आ गया. पहले x की पावर m का किया, ब्रैकेट एज इट इज रह गया आपका. फिर उसके बाद आपने b नॉट एक्स टू द पावर m को एज इट इज रखा और इस ब्रैकेट का डिफ्रेंसिएशन किया. ब्रैकेट का डिफ्रेंसिएशन करने के बाद में m प्लस 2 का डिफ्रेंसिएशन हो गया आपका 1. देन यू विल बी हैविंग एक्स स्क्वायर. फिर आप इस टर्म्स का करेंगे तो m इंटू m प्लस 4 आ जाएगा. फिर माइनस ऑफ m प्लस 2 एज इट इज m स्क्वायर प्लस 4m का कर लो, 2m प्लस 4 हो गया. डिनोमिनेटर में यू विल बी हैविंग स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर दैट इज m स्क्वायर इंटू m प्लस 4 का होल स्क्वायर. खाली एक टर्म निकाल दीजिए, दैट विल बी सफिशिएंट. नाउ दिस विल बी योर इक्वेशन नंबर 9. Now we write down the complete solution. For that we need the value of y1. So y1 will be the value of y star when m is equals to m1. m1 का मतलब -2. इसके लिए आप इक्वेशन नंबर 7 में m को -2 से रिप्लेस कर दीजिए. सॉरी, इक्वेशन नंबर 8 में y स्टार में.
सो इक्वेशन नंबर 8 में जब आप रिप्लेसमेंट करेंगे यहाँ आ जाएगा बी नॉट एक्स टू द पावर -2. फर्स्ट टर्म विल बिकम 0. सेकेंड टर्म भी आपका m-2 रखने पर 0 हो जाएगा. और थर्ड टर्म से आपके पास रिलेशन आएगा x टू द पावर 4. डिनोमिनेटर में आ जाएगा 4 इंटू 2 इंटू -2. दैट इज 4 2 8 2 16 विद अ माइनस साइन. एंड देन वी कैन हैव मोर टर्म्स एंड यू कैन कैलकुलेट दैट इट विल गिव यू x टू द पावर 6 अपॉन 2 to the power 5 into 6 and like that. After that we need to calculate y2. y2 will be del y star by del m और इसमें भी आपको रखना है m की वैल्यू -2. इसके लिए हम इक्वेशन नंबर 9 में m को -2 से रिप्लेस करेंगे. सो वी विल बी हैविंग b नॉट x टू द पावर -2 log of x. Then we have minus of x to the power 4 into 2 square into 4. Then we have x to the power 6 into 2 to the power 5 into 6 and so on. और सेकेंड ब्रैकेट से आपके पास आएगा b नॉट x to the power -2. Then you will be having 1 plus x square by 2 square and so on. Just one term is sufficient. So now complete solution will be y is equals to a1 y1 plus a2 y2 and you can simply write where y1 and y2 आप यहाँ वैल्यू भी रख सकते हैं और या फिर आप यहाँ पे सिंपली शो कर सकते हैं कि ये किस इक्वेशन से आ रहे हैं. सो दिस विल बी योर इक्वेशन नंबर 10 एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 11 एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 12. सो वेयर y1 and y2 आर गिवन बाय equations 10 and 11. So now we have considered all three cases when the point x is equals to 0 is regular singular point. Hope now you all are well versed with the topic series solution. All the PDFs of the notes are given in description box, so be sure to check it out.